My dear kids, good morning and Jai Hind. Children, in today's class, we again restart the chapter of morphology of flowering plants. And in the last chapter, we have just started and discussed that a plant containing two parts, which are vegetative and reproductive. Root, stem, and leaves are vegetative parts, whereas flowers and fruits are a reproductive part. So, children, we have seen the modification in vegetative parts also because except their main functions, sometimes these vegetative parts are modified to performing some special functions. Like in modification of root, we have seen food storage root, stilt root in sugarcane, food storage root in carrot, and then we have seen prop root in banyan tree and nematophore in the swampy plant, that is rhizophora. In stem, children, we have seen the tubers, the runners, stolon, the bulb, the rhizome, the horizontal stem, and in leaves, we have seen that few modifications there are in the case of leaves, such as in angiospermy plant, begonia, and bryophyllum. We have seen that leaves just produce the vegetative propagules, and through which the new plant bodies are arised. So, children, in this way, we have seen the modification of root, stem, and leaf, and then after the venation also. I just visualize you the structure of leaf, and then we have seen that the whole surface of leaf is said to be a leaf blade or lamina, and lamina is attached to the rachis through the petiole, which is made up of colon chymatous tissue. And later on in anatomy, we shall see that the upper surface of leaves are said to be as adaxial surface, and lower surface of leaves are said to be as abaxial surface, having numerous tiny pores, so called as stomata. So, children, and in venation, we have seen that the arrangement of veins and veinlets is known as venation, and in monocots, parallel venation occurs, whereas in dicot leaf, reticulate venation takes place. In reticulate venation, veins are arranged on either side of the midrib. मिडरिप के दोनों तरफ veins arranged रहेंगे, तब उसको कहा जाएगा रेटिकुलेट वेनेशन. And if all the veins are just parallel to midrib, then such kind of venation is said to be as parallel venation, which is the characteristic feature of monocots, which we see in banana, in sugarcane, and in maize. So, children, after completing the vegetative portion of a plant, which are root, stem, and leaf, just we started the flower, the reproductive part, and we have seen that flowers are the main reproductive part, fascinating part, attractive part of the plant, colorful part of the plant, having male and female sex organs. So, children, inflorescence from today's in today's class, we have to start number one topic of morphology of flowering plant, that is inflorescence. So, children, inflorescence is basically the arrangement of flowers on the floral axis. फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर के अरेंजमेंट को, फ्लावर्स के अरेंजमेंट को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस. और इनफ्लोरेसेंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखना पड़ेगा. एक नया डायग्राम इमेज मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ध्यान से इसको आप समझिए. ये फ्लावर का बेस मैं दिखा भी रहा हूँ, जिसको रिसेप्टिकल या थैलेमस कहा जाता है, और इसके निचले पोर्शन को पेडिसिल कहा जाता है बच्चों, पेडिसिल. ये फ्लावर का सबसे बाहरी पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट, सपोर्टिव पार्ट, एसेसरी ऑर्गन ऑफ फ्लावर, दैट इज वेल नोन एज कैलिक्स. टेक्सोनॉमी की भाषा में इसको सेपल्स कहा जाता है. आराम आराम से समझिएगा बच्चों, ये कैलिक्स है, और टेक्सोनॉमी की भाषा में इसको सेपल्स कहा जाता है, सेपल्स. दिस वन इज करोला, कलरफुल पार्ट. यह करोला है, करोला इज सो कॉल्ड एज पेटल्स. तो डोंट गेट एनी कंफ्यूजन. ये बाहरी जो ग्रीनिश पार्ट है, सपोर्टिव पार्ट है, दैट इज वेल नोन एज कैलिक्स. एंड दिस वन इज द कलरफुल पार्ट, जिसको पंखुड़ियां बोलते हैं हम लोग फ्लावर्स की. इस कलरफुल करोला को पेटल्स कहा जाता है. सो सेपल्स एंड पेटल्स, और यू कैन से कैलिक्स एंड करोला. एंड हियर द बेस ऑफ फ्लावर, दैट इज थैलेमस, एंड इट्स बेसल पोर्शन इज सेड टू बी एज पेडिसिल. Thalamus is also known as receptacle
and this one is calyx, sepals, and this one is corolla, petals. Children, calyx and corolla are collectively known as accessory organs. इन दोनों को सहायक या accessory organ कहा जाता है बच्चों, because calyx hold up the flower when it was the bud. जब फ्लावर बड के रूप में, फूल जब कली के रूप में था, तब यही कैलिक्स इसको होल्ड जो है इनक्लोज किया होता है, प्रोटेक्ट करता है। और व्हेन फ्लावर इमर्ज्ड आउट, और जब फ्लावर बाहर इमर्ज्ड आउट हो जाता है, तब भी ये कैलिक्स बेस प्रदान करता है और होल्ड अप किया रहता है फ्लावर को। दूसरी तरफ ये करोला जो है बच्चों, बीइंग कलरफुल इन नेचर, इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींचता है फॉर द नेक्टर। लेकिन गाहे में गाहे इंसेक्ट्स के विंग्स के ऊपर पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं और इस तरीके से एंटमोफिली हो जाता है। आप जानते हैं 50% के लगभग एंटमोफिली ही पॉलिनेशन होता है हमारे मेन फूड क्रॉप में। ओके, सिंस द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट, hence flowers containing female reproductive organ as well as male reproductive organs. Since children, this one is bisexual flower, that's why you are seeing here both the sex organs, male and female both. Now see the female sex organ. This one is gynoecium, individually known as pistil. ये देखिए ग्रीनिश कलर का पूरा दिखाई दे रहा है, यह pistil है, individually known as pistil, and pistil consists of 3 parts. The adhesive uppermost part is well known as stigma. This long narrow tube is well known as style, and this basal swollen part is well known as ovary. फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं बच्चों, स्टिग्मा, स्टाइल एंड बेसल swollen portion is ovary. And inside ovary, various locules are arranged. Locules means chambers are arranged, and in each locules ओब्यूल्स आर लोकेटेड। और लॉक्यूल के अंदर ओब्यूल्स दिखाई भी दे रहा है आपको, लॉक्यूल्स के अंदर ओब्यूल्स लोकेटेड होते हैं। ओब्यूल्स आर मेगा स्पोरेंजियम चिल्ड्रन, बिकॉज इनसाइड ओब्यूल्स आर मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगोज meiotic cell division that is reductional to produce haploid mega spores. And children, here you are seeing the male sex organs, androecium, individually known as stamen. A typical stamen consists of 2 parts, the bilobed anther and long filament. आप हर स्टेमेन के अंदर देख रहे हैं बच्चों, ये एंथर है बाइलोब, 2 लोब वाला, 2 मांस के पिंडों वाला, 2 लोब का एंथर, और यह लंबा फिलामेंट। और ये बाइलोब्ड एंथर जो है, दिस इज सो कॉल्ड एज मेगा माइक्रोस्पोरेंजियम। ध्यान दीजिएगा, दिस इज सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम because inside the anther lobe or microsporangium, microspore mother cell undergoes meiotic cell division to produce haploid microspores, which are so called as male gamete. As you know children, that microspores are developed into pollen grains, that is the male gamete. तो इसीलिए यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, एंथर लोब ये बाइलोब्ड है, और जबकि ये गाइनोसियम इंडिविजुअली यह पिस्टिल कहलाता है। तरीके से बच्चों हम लोगों ने समझ लिया कि मेगा स्पोरेंजियम या ओब्यूल जो है, यह फीमेल गोनेड है जिसके अंदर फीमेल गैमीट एक सेल का फॉर्मेशन होता है, और जबकि माइक्रो स्पोरेंजियम या एंथर लोब इज मेल गोनेड इन विच मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पर एक चीज और हमें क्लियर हो रही है बच्चों, कि चाहे हम हो या दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स, हर किसी में आप देखते हैं हमेशा कि मेल गैमीट्स की संख्या ज्यादा होती है। मेल गैमीट्स आर न्यूमरस इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज। माइक्रोस्पोर मैंने बताया यहाँ पर भी, तो मेल गैमीट्स आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एंड न्यूमरस इन नंबर, वेयर एज फीमेल गैमीट्स आर ऑलवेज वन, स्टेशनरी वन, एंड लार्जर इन साइज, दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज मेगागैमेटोसाइट। सो चिल्ड्रन, in inflorescence, as I have already told you, that inflorescence is the arrangement of flowers on the floral axis. Floral axis के ऊपर फ्लावर के अरेंजमेंट को बच्चों inflorescence कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, an inflorescence is a group or clusters of flowers arranged on a stem that is composed of a main branch or a complicated अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस। ध्यान दीजिएगा, पूरी बात को फिर से समझ लीजिए।
एन इन्फ्लोरेसेंस इज अ ग्रुप ऑफ क्लस्टर्स ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर्स के क्लस्टर्स का ग्रुप होता है जो स्टेम के ऊपर अरेंज होते हैं। दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ मेन ब्रांच, जो जिसमें कि मेन ब्रांच हो या कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट हो सेवरल ब्रांचेज का, तो उसको इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। यानी फ्लावर्स के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस बोलेंगे। मार्फोलॉजिकली इट इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द शूट ऑफ सीड प्लांट्स वेयर फ्लावर्स आर फॉर्म्ड। एज वी नो वेरी वेल कि शूट एपेक्स से ही फ्लावर्स का फॉर्मेशन होता है, तो इसलिए यहाँ पर इस चीज को ऐड किया गया है। मार्फोलॉजिकली इट इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द शूट ऑफ सीडेड प्लांट। सीड प्लांट जो होते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनके मॉडिफाइड पार्ट ऑफ शूट होते हैं ये फ्लावर्स। एंड वेयर फ्लावर्स आर फॉर्म, जहाँ पे कि फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर बड बनता है, वहां से फ्लावर्स अराइज होते हैं। तो इसीलिए इसको इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है बच्चों। हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्प क्रम। पुष्प क्रम यानी फ्लावर्स का क्रम या फ्लावर्स का अरेंजमेंट। तो इन्फ्लोरेसेंस बेसिकली दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं बच्चों, रेसिमोज और साइमोज। ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लोरेसेंस इज ऑफ टू काइंड, दैट इज रेसिमोज एंड साइमोज। यहाँ मैंने रेसिमोज और साइमोज लिखा भी है, देख रहे हैं आप, रेसिमोज एंड सेकेंड वन इज साइमोज। इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। अभी मैं दूसरा डायग्राम भी दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर देखिए, फिर हम लोग एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। रेसिमोज, एज वी सी नीम in Mangifera indica, that is the mango; in Azadirachta indica, that is the neem; and most of the flowering plants we see the racemose arrangement of flowers, whereas in Dianthus and in other plants, Drosera also, in Drosera Cymose arrangement takes place. तो पहले रेसिमोज देखते हैं। इन रेसिमोज अरेंजमेंट फ्लावर्स आर अराइज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, ये फ्लोरल एक्सिस है बच्चों, तो फ्लावर्स आर अराइज्ड ऑन द आइदर साइड ऑफ फ्लोरल एक्सिस एंड फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। ध्यान दीजिए, फ्लावर्स आर अराइज्ड अपीयर ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस के दोनों तरफ फ्लावर्स अराइज्ड होंगे एंड फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, और फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यूली ग्रो करता चला जाएगा। तो सच काइंड ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट इज वेल नोन एज रेसिमोज। रेसिमोज इसको बोलेंगे। एंड चिल्ड्रन, इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस thus just the floral axis tip terminates to flower। यानी यहाँ पर flowers are arised just at the tip of floral axis and it stop to grow। जाहिर सी बात है, अगर फ्लोरल एक्सिस के टिप पर ही फ्लावर अराइज हो जाएगा, तब यहाँ पर जैसा कि आप मारीगोल्ड वगैरह में देखते हैं, तो उस केस में जो है फ्लोरल एक्सिस स्टॉप टू ग्रो। अब फ्लोरल एक्सिस आगे ग्रो नहीं कर पाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। Such kind of arrangement is said to be a cymose arrangement. And in racemose arrangement, again I am reciting, children, please listen very carefully. In racemose inflorescence, flowers are arranged on either side of floral axis and floral axis continue to grow. Whereas in cymose inflorescence, flowers are arranged just at the tip of floral axis and it stop to grow. Okay, children? So now please write here. Please write in your fair copy that a type of flowering arrangement in which the growing region at the tip of the flower stalk continue to produce new flower buds। क्योंकि जो रीजन आप टिप रहेगा फ्लावर स्टॉक का, वो कंटिन्यू करता रहेगा ग्रो को ऊपर की तरफ, और नए फ्लावर बर्ड्स अराइज होते रहेंगे। एज ए रिजल्ट द यंगेस्ट फ्लावर्स आर एट द टॉप, और हमेशा जो नया वाला फ्लावर रहेगा, छोटा नया इंग्लिश से मतलब है जो न्यूली फॉर्म फ्लावर है, वो हमेशा टॉप पे रहेगा। एंड द ओल्डेस्ट फ्लावर्स आर एट द बेस ऑफ द स्टॉक। ये आप समझ रहे होंगे बच्चों, क्योंकि मैंने बताया कि इन रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर अराइज्ड ऑन आइदर साइड ऑफ फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस के दोनों तरफ फ्लावर्स अराइज्ड हो जाएंगे और फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, ऊपर की तरफ ग्रो करता रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे यंगेस्ट फ्लावर्स अराइज हुए हैं वो सबसे टॉप पे रहेंगे, और जो सबसे पुराने वाले फ्लावर्स हैं वो सबसे बॉटम पे रहेंगे स्टॉक के। ओके चिल्ड्रन, सो दिस वन इज द रेसिमोज अरेंजमेंट। सी हियर नाउ आई हैव अटैच्ड द image also, the diagram of racemose inflorescence also। Here you are seeing that floral axis, this one is okay, this one is floral axis, you are seeing here this one is floral axis,
कंटिन्यू टू ग्रो, ये ग्रो करता ही चला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्लावर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से फ्लावर्स नीचे से ऊपर की तरफ अराइज होते चले जा रहे हैं, हर बार ऊपर हो रहे हैं। आप देखिए जो यंगेस्ट वाला है, जो सबसे नया वाला है 7 और 8 कहाँ पर है, टॉप पर, और जो सबसे पुराना है 1 और 2 कहाँ पर है, बॉटम ऑफ द स्टॉक। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि रेसिमोज अरेंजमेंट में जो न्यूली फॉर्म फ्लावर्स होंगे, न्यूली अराइज्ड फ्लावर्स होंगे, यंगेस्ट फ्लावर्स होंगे, ऑलवेज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ फ्लोरल एक्सिस, whereas the oldest flowers are always located at the bottom of floral axis. So this one is the racemose arrangement in which flowers are arranged on either side of floral axis and floral axis continue to grow. Children, see the when the main axis of the inflorescence is branched and lateral branches bear flowers in a simple raceme manner, it is known as compound raceme or पेनिकल। कंपटीशंस में कई बार पेनिकल करके पूछा हुआ है, तो आप जानते रहे कि पेनिकल या कंपाउंड रेसिम का क्या मतलब होता है बच्चों। जब मेन एक्सिस जो इन्फ्लोरेसेंस का है उसमें ब्रांचिंग हो जाए, ब्रांच हो जाए, और लेटरल ब्रांचेज जो होते हैं वह भी फ्लावर को बियर करें सेम सिंपल रेसिम मैनर में, यानी कि लेटरल ब्रांचेज में भी दोनों साइड में फ्लावर्स अराइज्ड हो और लेटरल ब्रांचेज कंटिन्यू टू ग्रो, तो इस इट इज नोन एज कंपाउंड रेसिम। इस तरह के अरेंजमेंट को कंपाउंड रेसिम या पेनिकल बोलेंगे। मैंगो में देखते हैं हम लोग, नीम का एग्जांपल अभी पीछे मैंने दिया था, यहाँ पे हम लोग कंपाउंड रेसिम रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस या पेनिकल को देखते हैं बच्चों। जबकि एक हमारा मेन ब्रांच हो गया और उससे जो लेटरल ब्रांचेज निकल रहे हैं वहां पर भी सेम मैनर में ही दोनों तरफ फ्लावर्स अराइज होते रहेंगे, तो उसको पेनिकल या रेसिम बोलेंगे। तो ये भी एग्जांपल्स में आ गया मैंगो और नीम। इसके बाद दूसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, दैट इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साइमोज, साइमोज इन्फ्लोरेसेंस सेकंड नंबर इज साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइम मींस डेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि फ्लावर्स अराइज होते चले जाएंगे और फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो करता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस होता है। साइम का मतलब ही होता है डेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस बच्चों, और जबकि रेसिम का मतलब होता है इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। तो वहां पर इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस हम लोगों ने देखा, either side of the floral axis flowers are arised and floral axis continue to grow. But here in the case of cymoge inflorescence, a type of flowering shoot in which the first formed flowers develop from the growing region at the top of the flower stalk. यहाँ पर फ्लावर स्टॉक से जो फ्लावर का टिप है ऊपर की तरफ, वो फ्लावर टिप ही जो है मॉडिफाई हो जाता है, फ्लावर बना लेता है, यानी फ्लावर्स आर अराइज जस्ट एट द टिप ऑफ एक्सिस एंड इन दिस वे इट स्टॉप टू ग्रो। डायग्राम देखिए बच्चों, इस डायग्राम को देख के आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए फ्लोरल एक्सिस के टिप पर ही देखिए फ्लावर्स अराइज हो गए हैं, या टिप टर्मिनेट कर जा रहा है फ्लावर में। यहाँ पर देखिए टिप टर्मिनेट कर जा रहा है फ्लावर में, तो जाहिर सी बात है अब इसके आगे ये एक्सिस नहीं जाएगा, यहीं पर एक्सिस रुक जाएगा। ऐसा आप देखते हैं मारीगोल्ड में भी दिखते हैं, ऐसा ही यहीं पर ये रुक जाएगा। अब फ्लोरल एक्सिस आगे की तरफ ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस flowers are arise just at the tip of floral axis, and after inflorescence children, we have to discuss another taxonomic feature, that is estivation। मैंने पहले ही बताया है आपको मार्फोलॉजी, that is the external structure and feature arrangement of external body parts। That's why in this particular chapter we have to understood all the arrangement of a plant. Like we have seen the modification of root, stem and leaf. We have seen the arrangement of veins in leaves. We have seen the arrangement of leaves also. In today's class, we have seen the inflorescence, that is the arrangement of flowers on the floral axis. And right now, we are going to discuss estivation। तो estivation और उसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। Estivation basically is the arrangement of sepals and petals। ध्यान दीजिएगा, estivation is the arrangement of sepals and petals in their respective whorl। अपने अपने रेस्पेक्टिव घेरे में कैलिक्स और करोला के अरेंजमेंट को एस्टिवेशन कहा जाता है बच्चों। एज यू नो दैट कैलिक्स आर आल्सो नोन एज सेपल्स एंड करोला आर आल्सो नोन एज पेटल्स, एंड कैलिक्स एंड करोला आर collectively said to be as accessory organs because calyx hold up the flower when
The flowers were in the form of bud, and the corolla being colorful, attracting the insects for nectar, and in this way insect pollination takes place. So calyx and corolla are not directly involved in reproduction, but they are indirectly involved in reproduction and helps the process of reproduction. That's why calyx and corolla are collectively said to be as accessory organs. इसीलिए उनको एसेसरी ऑर्गन्स कहा जाता है बच्चों। एसेसरी का मतलब ये होता है सहायक या सहायता करने वाले। सो द अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला, दैट इज सेपल्स एंड पेटल्स इन देयर रेस्पेक्टिव वॉर्ल, इज नोन एज एस्टिवेशन। और चार तरीके के एस्टिवेशन होते हैं बच्चों, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और बैक्सिलरी। तो प्लीज सी हियर, यू आर सीइंग हियर द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी बुक। यहाँ मैंने एनसीईआरटी बुक का डायग्राम लिया हुआ है बच्चों। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, चार तरीके के एस्टिवेशन जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको, वाल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और बैक्सिलरी। ये देखिए वाल्वेट, वाल्वेट इन वाल्वेट एस्टिवेशन सेपल्स एंड पेटल्स डू नॉट ओवरलैप ईच अदर इन देयर रेस्पेक्टिव वर्ल्ड। अपने अपने घेरे में सेपल या पेटल अपने दूसरे मेंबर्स को, अपने घेरे के दूसरे मेंबर्स को ओवरलैप नहीं करते हैं। दे जस्ट टचेस द मार्जिन, ये केवल एक दूसरे के मार्जिन को टच करते रहते हैं। दिस वन इज स्पेशल काइंड ऑफ एस्टिवेशन, वाल्वेट एस्टिवेशन। एंड सेकेंड वन इज ट्विस्टेड। ट्विस्टेड का मतलब ये होता है दोहरा होता चला जाना। यहाँ पर देखिए, in twisted inflorescence, sepals and petals just overlap the next member of their respective whorl in a fixed direction। ध्यान से समझिए मेरी बात को फिर से एक बार। ट्विस्टेड इन्फ्लोरेसेंस में बच्चों कैलिक्स और करोला यानी सेपल्स और पेटल्स अपने घेरे वाले रेस्पेक्टिव मेंबर्स को ओवरलैप करते चले जाते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, फिक्स्ड डायरेक्शन में, जिसकी वजह से यह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए नजर आते हैं और ट्विस्टेड फॉर्म में दिखाई देते हैं। दैट इज सेड टू बी एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। नाउ कम टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज इम्ब्रिकेट। तीसरे वाले एस्टिवेशन को बच्चों इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहा जाता है। ओवरलैपिंग यहाँ पर भी होती है। सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप द अनदर मेंबर ऑफ देयर वर्ल्ड बट नॉट इन फिक्स्ड डायरेक्शन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ट्विस्टेड वाले एस्टिवेशन में जो ओवरलैपिंग होती थी बच्चों, वह एक फिक्स्ड डायरेक्शन में होती थी, सब एक के ऊपर एक इस तरीके से ट्विस्टेड वे में दिखाई देते थे। एंड इन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन द overlapping takes place in sepals and petals with the member of their respective whorl but not in the fixed direction। यहाँ पर देखिए, इधर ये ऊपर की तरफ है और इस साइड ये नीचे की तरफ आ जा रहा है, जिसके वजह से यह ट्विस्टेड नहीं बल्कि इम्ब्रिकेट फॉर्म में दिखाई देगा and well known as imbricate estivation। And fourth one you are seeing children, that is the special kind of estivation generally found in the family Fabaceae। ये फैमिली फैबेसी में स्पेशल तरीके का अरेंजमेंट पाया जाता है बच्चों ये करोला के अंदर। स्पेशली दिस वन इज द अरेंजमेंट ऑफ करोला नॉट द कैलिक्स। यह पेटल्स का अरेंजमेंट है फैबेसी फैमिली में, मटर के परिवार में यह अरेंजमेंट दिखाई देता है बच्चों। एंड सच काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ करोला इज आल्सो नोन एज पेपेलियोनेसियस। इसको पेपेलियोनेसियस अरेंजमेंट कहा जाता है। इस तरीके के बैक्सिलरी एस्टिवेशन में बच्चों एक सबसे बड़ा करोला रहेगा और फिर दो उससे छोटे करोला रहेंगे, जिसको बड़ा वाला करोला या पेटल ओवरलैप कर रहा होगा, और फिर ये दो जो छोटे वाले करोला थे इनसे भी दो छोटे पेटल्स रहेंगे जिनको ऊपर वाले दो ओवरलैप कर रहे होंगे। लास्ट वाले सबसे छोटे वाले जो दो पेटल्स हैं वो आपस में जुड़े भी रहेंगे। इसीलिए बच्चों टेक्सोनॉमी की भाषा में अगर हम फ्लोरल फार्मूला जब लिखने जाते हैं तो इसको बताते हैं 1+2 प्लस ब्रैकेट में 2। ध्यान दीजिएगा, 1 एक पेटल प्लस 2 दो और पेटल प्लस 2 इन ब्रैकेट showing that last two petals are joined together। That's why we write 1 plus 2 plus 2 in bracket। Here please see children, 1 plus 2 and plus 2 in bracket। तो ये जो ब्रैकेट में 2 लिखा रहेगा ये दिखा रहा होगा कि ये दोनों पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो 1 is the most largest petal, just overlap 2 smaller petals and these 2 smaller petals again overlap
the two more smaller petals which are joined together, and such kind of papilionaceous arrangement is well known as maxillary, found in the family Fabaceae in fact, in which the larger petal overlaps two smaller petals and the two smaller petals further overlap another two more smaller petals which are joined together. That's why in plural formula we write the 1 plus 2 plus 2 in bracket. So children, in valvate we are seeing that sepals and petals just touches the margin of another member of their respective whorl. In twisted, we see that the sepals and petals just overlap the another member of their respective whorl in a fixed direction. And in imbricate, we have seen that sepals and petals overlap the another member of their respective whorl, but not in the fixed direction. And in this special kind of arrangement, maxillary papilionaceous arrangement, one largest corolla just overlap two smaller petals, and two smaller petals again overlap the more smaller petals which are associated with each other. So children, in this way we are seeing four kind of estivation which are valvate, twisted, imbricate and maxillary. एक बार पेन से बना के मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ यहाँ पर बच्चों। आप देख रहे हैं किस तरीके से एग्जाम में बनाना है। You have not to spend so much time to make the diagram of biology. The diagrams of biology should be neat, clean, cleared and well labeled. बायोलॉजी का डायग्राम बहुत सुंदर न बने चलेगा बच्चों, लेकिन समझ में आना चाहिए और वेल लेबल्ड होना चाहिए। सारी चीजें लेबलिंग हुई होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ देखिए मैंने चारों एस्टिमेशन बना के दिखाने की कोशिश की है। दिस वन इज वालवेट, each and every members of their respective whorl just touching the margin, केवल मार्जिन को टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ट्विस्टेड, आप देख रहे हैं सेपल और पेटल अपने रेस्पेक्टिव मेंबर्स को ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन एक डायरेक्शन फिक्स्ड है जिसकी वजह से दे अपीयर्स इन ट्विस्टेड मैनर। इन इम्ब्रिकेट you are seeing here overlapping takes place, but overlapping direction is not fixed. That's why they are said to be as imbricate manner, imbricate estivation. And here you are seeing children, as I have already told you, that the largest petal surround overlaps two smaller petals, and two smaller petals again overlap the more smaller petals which are joined together. 1 plus 2 plus 2 in bracket. This one is the special arrangement of sepal, special arrangement of petals only found in family Fabaceae. So children, after estimation, again we have arrived on the new and very big topic, that is प्लेसेंटेशन। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक आ गया हमारे सामने प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन बच्चों, जैसा कि आप प्लेसेंटा जानते हैं, मैमल्स के अंदर वी आर प्लेसेंटल मैमल्स, and you know very well that the placenta is the connective link between mother and fetus for the purpose of nutrition, respiration and excretion. अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें या और भी प्लेसेंटल मैमल्स की बात करें बच्चों, तो प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच की एक कनेक्टिव ट्यूब होता है, जिससे मदर के थ्रू फीटस को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में न्यूट्रिशन मिलता रहता है, और प्लेसेंटा के थ्रू ही O2 मिलता रहता है, ऑक्सीजन मिलता रहता है, और जबकि CO2 और वेस्ट मटेरियल रिमूव भी होते रहते हैं। दैट्स वाई चिल्ड्रेन प्लेसेंटा इज एसोसिएटेड विथ respiration, nutrition, and also placenta is responsible for the immunity of the fetus also. Fetus, when the baby inside the uterus of its mother, then it is said to be as fetus, not male baby or female baby. It is said to be as male fetus or female fetus. Similarly, in plants, children, ovules are attached with ovary. तो ओव्यूल्स ओवरी से जुड़े होते हैं बच्चों, फ्यूनिकल के थ्रू। एक डंडी होती है छोटी सी, उसको फ्यूनिकल बोलते हैं। बेसिकली प्लेसेंटा को रिजेंबल कर रहा होता है। यहाँ लिखा भी है, देखिए, इन बायोलॉजी प्लेसेंटेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन एंड टाइप एंड स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट ऑफ द प्लेसेंटा। बेसिकली इट इज द अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा इनसाइड द ovary. Basically placenta, as I have already told you, transfer the nutrients, transfer the respiratory gases, water and maternal tissue to a growing embryo, from maternal tissue to a growing embryo.
मैटरनल टिश्यू से ग्रोइंग एम्ब्रियो की तरफ न्यूट्रिएंट्स को रेस्पिरेटरी गैसेस या वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, और जबकि वेस्ट मटेरियल को और CO2 को कलेक्ट भी कर रहा होता है। लिखा भी हुआ है, एंड इन सम इंस्टेंसेस टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। यानी अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की ही बात कर लें तो ह्यूमन बीइंग में प्लेसेंटा का काम O2 और अन्य न्यूट्रिएंट मटेरियल को बेबी तक पहुंचाना भी है, और बेबी के बॉडी के अंदर से CO2 और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना भी है। तो these are the work of placenta, and here in morphology of flowering plant children we are seeing that the arrangement of placenta is well known as the placentation, that you can say the arrangement of ovules within ovary। ध्यान दीजिएगा, the arrangement of ovules within ovary is known as प्लेसेंटेशन, यानी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को भी बच्चों प्लेसेंटेशन कहा जाता है। दैट इज ऑफ 5 काइंड। प्लेसेंटेशन इज ऑफ 5 काइंड चिल्ड्रन। सी हियर, 5 तरह का प्लेसेंटेशन आपको नजर आ रहा है बच्चों। टू मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, प्लीज मेक मार्क इट एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। प्लेसेंटेशन 5 तरीके की प्लेसेंटेशन बच्चों यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। Number 1 is marginal, number 2 is exile, number 3 is parietal, number 4 is free central, and number 5 is basal presentation। तो 5 तरीके की प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप बच्चों। मैंने पहले ही बताया आपको, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेंजमेंट को प्लेसेंटेशन कहते हैं। एंड वी नो वेरी वेल दैट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovules are modified into seeds whereas ovaries are modified into fruits। तो यहाँ पर हम इसीलिए कोई भी फ्रूट्स हम देखें सीड्स उसके अंदर ही होता है, क्योंकि ओव्यूल्स हमेशा ओवरी के अंदर ही होते हैं। और पहला हम लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन देख रहे हैं बच्चों, दैट इज मार्जिनल। पी यहाँ बताना नहीं पड़ेगा, पी आपको नजर आ रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ देखिए, एक इस तरीके से जो है यहाँ पर प्लेसेंटा एक जो है रिज बनाता है, रिज। ये जो देखिए, और यहाँ पर एक रिज बना के एक रिज बनाता है, और रिज के आइदर साइड में ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं। एक इधर फिर एक इधर रहेगा, एक इधर फिर एक इधर रहेगा, एक इधर फिर एक इधर रहेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ओवरी एक स्यूचर बनाता है, बेसिकली एक रिज बनाता है, और रिज के दोनों तरफ जो है ओव्यूल्स अरेंज होते हैं इस तरीके से। दैट इज सेड टू बी मार्जिन। बेसिकली यहाँ पे एक मार्जिन बनता है, और उस मार्जिन के दोनों तरफ ओव्यूल्स अरेंज रहते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मार्जिनल प्रेजेंटेशन में। बेस्ट एग्जांपल इज पी मटर। यस चिल्ड्रन, दिस इज एक्जाइल प्रेजेंटेशन इन मल्टीलैक्यूलर ओवरी यू आर सीइंग हियर। यहाँ पर कई लैक्यूल्स अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, और ओवरी जो है, ओव्यूल्स जो है इन डिफरेंट लैक्यूल्स में अरेंज है। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस तरीके से जो है इस मल्टीलैक्यूलर ओवरी में ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं। बेसिकली यहाँ पर जो इस तरीके से ओव्यूल्स एक्सियल हो गए हैं, एक्सियल हो गए हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया एक्साइल प्रेजेंटेशन। और बेस्ट इसका एग्जांपल है टोमेटो। जब भी आप टोमेटो सैलेड वगैरह में जब काटते हैं तो देखते हैं इस तरीके का डायग्राम आपको नजर आता है। एंड दिस वन इज पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल का मतलब ही होता है बच्चों साइड में। when ovules are just arised on the peripheral wall of ovary, इस ओवरी के पेरिफेरल वॉल पे जब ओव्यूल्स अराइज्ड होंगे, एंड नो सेप्टाइज नो लॉक्यूल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर कोई लॉक्यूल्स नहीं रहेगा। बाद में जाके फॉल्स सेप्टम बन जाता है बच्चों पैराइटल प्रेजेंटेशन में। ध्यान रखिएगा इस बात को, पैराइटल प्रेजेंटेशन में बाद में फॉल्स सेप्टम बनता है, सीडो सेप्टम बनता है। बट हियर द ओवरी इज यूनिलैक्यूलर एंड ओव्यूल्स आर अराइज्ड on the inner peripheral wall of the ovary, and such type of presentation is said to be as parietal presentation found in mustard, that is argemone, mustard, that is Brassica compresstis, sorry Brassica compresstis। ठीक है, ये मस्टर्ड सरसों में पाया जाता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन। चौथा नंबर देख रहे हैं आप बच्चों, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन एक डायंथस में प्रिमरोज में होता है बच्चों, प्रिमरोज प्लांट इन विच ह्यूगो डी वरीज डिस्कवर्ड म्यूटेशन। आगे चल के आप पढ़ेंगे भी। तो ये फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जहाँ पे इस तरीके से ओव्यूल्स जो है फ्री सेंट्रली अरेंज्ड हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन। एंड इन दिस काइंड ऑफ बेसल, नंबर 5, इन बेसल प्रेजेंटेशन ये
a single ovule is attached with the basal ovary. यहाँ पर जो ओवरी है बेसल साइड में आ जाएगा और इससे एक सिंगल ओव्यूल अटैच्ड रहेगा इस तरीके से. दिस इज बेसल प्रेजेंटेशन मेनली फाउंड इन मारीगोल्ड. ये मारीगोल्ड में पाया जाता है बेसल प्रेजेंटेशन. तो इस तरीके से बच्चों वी आर सीइंग दैट 5 काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन: मार्जिनल, एक्साइल, parietal, free central and basal. If we talk about the examples which are very important for your exam, so the example of marginal presentation is P, the axial presentation is tomato, the parietal presentation is mustard, the free central presentation is primrose plant, and basal presentation is sunflower or marigold. If we talk about the scientific name of each and every examples, because you know very well that the importance of scientific name or biological names. So marginal presentation P, Pisum sativum. Axial presentation tomato, Lycopersicum esculentum. ध्यान दीजिएगा, Lycopersicum esculentum. Parietal presentation example mustard, Brassica campestris, Number 4 is a free central presentation. Example is primrose plant, that is primrose, basically evening primrose plant. And here you are seeing the basal presentation. Here one more example I have told you, primrose plant, and one more scientific name dianthus. One more example is dianthus. And here the basal presentation examples are sunflower, scientific name Helianthus anus. So in this way, children, we have seen the presentation as well, presentation also. Children, we are seeing here that this chapter is just belonging to the arrangement of each and every part of the plant or flowers. Also, we are seeing here. After in today's class, we have discussed about the inflorescence, that the arrangement of flowers on the floral axis, and then estivation, that is the arrangement of calyx and corolla, sepals and petals with the respective members of their respective whorls. And lastly, we have seen the placentation also, that is the arrangement of ovules within ovary. एक बार मेरी बात को फिर से सुन लीजिए आप बच्चों. आज हम लोगों ने इनफ्लोरेसेंस देखा, फ्लावर्स के अरेंजमेंट, फ्लावर का अरेंजमेंट फ्लोरल एक्सिस के ऊपर जो होता है, that is inflorescence. And we have seen two kind of inflorescence, which are racemose and cymose. Next topic, we have seen the estivation, that is the arrangement of sepals and petals in their respective whorl with the other members. और यहाँ पर हम लोगों ने 4 तरीके का एस्टिवेशन देखा बच्चों: valvate, twisted, imbricate and maxillary. And lastly, we have seen the placentation, that is the arrangement of ovules within ovary. And in placentation, we have seen the 5 kind of placentation, which are marginal, example P, axial, example tomato, and the parietal, example mustard, free central, example dianthus, and basal, example sunflower, that is Helianthus anus. So children, 3 kind of arrangement we have seen today in today's class, which are the arrangement of flowers, arrangement of calyx and corolla, and arrangement of ovules within ovary. Please learn these things, and in the next class we shall discuss about certain taxonomic categories. Thank you very much.